A very warm good morning wish to all lovely kids of APS. कैसे हो बच्चे? How are you? Hope you all are fit and healthy and taking care of yourself. I always pray to God for your good health and happiness. Beta, here is a quote for you. The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. आपकी पढ़ाई के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसको आपसे कोई भी दूर नहीं लेके जा सकता. बेटा, when you acquire knowledge, what you have learned becomes a part of you. जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है, जब आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हो, तो वो आपका एक हिस्सा बन जाता है. फॉर दिस रीज़न नोबडी कैन डिट्रैक्ट इट फ्रॉम यू. और इसी वजह से कोई भी उसको आपसे चुरा कर नहीं ले जा सकता. इट विल ऑलवेज बी योर्स. वो हमेशा आपकी ही रहेगी. बेटा, विद्या वो धन है, हमारी नॉलेज, हमारी पढ़ाई वो धन है जो हमसे कोई भी चुरा कर नहीं लेकर जा सकता. सो कीप लर्निंग. इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए. लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 2. नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क वी डू. Today we will revise the chapter through animation. We'll discuss its exercise part and do activities. I welcome you all in today's virtual class of EVS. Beta, today we will do chapter 2, Work We Do part 2. In the previous video, we read about occupation, different types of occupation and child labor. Today, before starting our class, let's recap the important points of the chapter. Beta, people do different types of work. अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं. People do work according to their interest and need. लोग अपने इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. By working, people earn money. जब लोग काम करते हैं तो वो क्या अर्न करते हैं? मनी. And the work people do to earn money is called an occupation. जो लोग काम करते हैं मनी अर्न करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन. क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन. इन विलेजेस पीपल वर्क इन फील्ड्स. बेटा, इंडिया में लोग कुछ विलेजेस में रहते हैं, कुछ सिटीज़ में रहते हैं, कुछ टाउन्स में रहते हैं, तो वो अपने वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं. जो लोग गाँव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, दे मोस्टली वर्क इन फील्ड्स. वो ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं एंड ग्रो क्रॉप्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर अस. इन टाउन्स एंड सिटीज पीपल हैव देयर ओन बिजनेस और वर्क इन ऑफिसेस. बेटे, शहरों में लोग जो रहते हैं, जैसे आप लोग शहर में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं? या तो उनका अपना बिजनेस होता है या फिर वो ऑफिस और फैक्ट्रीज में काम करते हैं. अब आपके पापा हो सकता है उनका बिजनेस हो, वो शॉप पर जाते हों, या आपके कुछ के पापा क्या करते होंगे? ऑफिस में जाते होंगे काम करने के लिए, है ना. इफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years वर्क्स फॉर अ लिविंग, इट इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर. बेटा, बच्चे ज़्यादातर स्कूल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता और उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है. और वो बच्चे अगर 14 years की एज से कम हैं और वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं चाइल्ड लेबर. क्या कहते हैं? चाइल्ड लेबर. नाउ सी द एनिमेशन ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज पार्ट. Chapter 2, Work We Do. People do different kinds of work based on their interest and need. People work so that they can earn money and have a comfortable life. The work people do to earn money is called an occupation. In India, people live in villages, towns and cities. The work they do depends on where they live. People in the villages work in fields and grow food and other useful products. Such people are called farmers. Some sell milk and are called milkmen.
There are other jobs that people do. A doctor treats people who are ill. A carpenter makes furniture. A plumber fixes leaking pipes and taps. A tailor stitches clothes. An electrician repairs lights, fan, etc. People who live in towns and cities have their own business or they work in offices or factories. What work do children do? Children mostly go to school, but all children are not so lucky. Some children cannot go to school for a number of reasons. If a child below the age of 14 years works for a living, it is called child labor. Let's start the exercise of the chapter. Question A. Tick the correct answer. बेटा आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. फर्स्ट वन. Who grows food for us? Farmer, barber, carpenter. Which is the correct answer? Yes, farmer. Option A is correct. Second question. Who stitches clothes? Tailor, sailor, plumber. Tell me which is the correct answer? Yes, tailor. Option A is correct. Tailor stitches clothes. Third one. Who makes furniture? Plumber, carpenter, cobbler. Yes, carpenter. Carpenter makes furniture. Option B is correct. Question B. Write true or false. Beta, there are three statements. You have to write whether these statements are true or false. First one. People work to earn money. लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं. Is it true? Yes, it is true. Second. People in cities work in fields and grow food. जो लोग शहरों में रहते हैं वो फील्ड्स में काम करते हैं यानी कि खेतों में काम करते हैं और फूड ग्रो करते हैं. Is it true? No, it is false. Some children have to work to earn money. कुछ बच्चों को पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है. Is it true? Yes, it is true. Question C. Fill in the blanks with the right word from the box. बेटा यहाँ पर 5 sentences given हैं. आपको blank fill करना है with the help of words given in the box. First one. People do dash kinds of work. लोग dash kinds of work करते हैं. Yes, different kinds of work. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? Different. Second, some people sell milk and are called dash. कुछ लोग दूध बेचते हैं और उन्हें dash कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा उन्हें? Milkman. Very good. Third one, people who live in dash and dash have their own business or they work in offices or factories. वो लोग जो डैश और डैश में रहते हैं उनके या तो अपने बिजनेस होते हैं या वो ऑफिस और फैक्ट्रीज में काम करते हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यस, टाउन्स एंड सिटीज. पीपल हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज हैव देयर ओन बिजनेस और दे वर्क इन ऑफिसेज और फैक्ट्रीज. नंबर 4. अ डैश रिपेयर्स फर्नीचर. क्या आएगा बेटा इस ब्लैंक में? Yes, carpenter. A carpenter repairs furniture. Fifth one. A dash stitches clothes. Yes, tailor. A tailor stitches clothes. Now, question D. Answer these questions. Beta, there are 3 questions. You have to write down answers of these questions in your EVS notebook in neat and clean handwriting. First one. Why do people work? लोग काम क्यों करते हैं? Yes, people work to earn money. लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं. Question 2. What is an occupation? Occupation क्या होता है? The work people do to earn money is called an occupation. वो काम जो लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे occupation कहते हैं. Question 3. What is child labor? Child labor क्या होता है?
If a child below the age of 14 years works for a living, it is called child labor. अगर कोई बच्चा जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है वो पैसा कमाने के लिए काम करता है तो उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं। क्वेश्चन ई, थिंक एंड आंसर। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच कर लिखना है। इज गोइंग टू स्कूल इम्पॉर्टेंट? वाई? क्या स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है और क्यों? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इज गोइंग टू स्कूल इम्पोर्टेंट? यस, गोइंग टू स्कूल इज इम्पोर्टेंट because we learn many things there like reading, writing, singing, dancing. Okay? Now, activity time. First activity is, what would you like to become when you grow up and why? जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहोगी और क्यों? बेटे आपसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे और क्यों। देखो बच्चे, आप आर्टिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर, नर्स, मैकेनिक, फार्मर, रिपोर्टर। सिर्फ यही प्रोफेशन नहीं है, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, एयर होस्टेस बन सकते हो, आप बड़े होकर आर्मी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो और बहुत सारे फील्ड हैं। तो बेटा आप बड़े होकर जिस भी फील्ड में जाना चाहो आप जा सकते हो और सक्सेस पा सकते हो। ठीक है बच्चे। एक्टिविटी 2, फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ चाइल्ड वर्किंग एज अ लेबरर। बेटा हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्रॉम अ चाइल्ड हु इज वर्किंग एज अ लेबरर। और वो क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? नेम ऑफ द चाइल्ड, एज, रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, हाउ मच मनी ही और शी अर्न्स। बेटा डे बिफोर यस्टरडे आई वेंट इन द मार्केट और वहाँ पर मैंने अचानक एक छोटे से बच्चे को एक टी स्टॉल पर काम करते देखा। तो मैं उसके पास गई और उससे ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। बात करते वक्त बेटा मैंने मास्क पहना हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी थी। तो इंफॉर्मेशन क्या थी? बच्चे का नेम था राजा, एज 10 years, रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, बैड फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन। इसका मतलब है बच्चे कि राजा के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसकी स्कूल की फीस डिपॉजिट करवा पाए या उसको स्कूल भेज पाए, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता। एंड हाउ मच मनी ही अर्न्स? 4,000 रुपीज पर मंथ। सो बच्चे अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन किसी चाइल्ड लेबरर से कलेक्ट कर लिख सकते हैं। ओके बट बेटा बात करते वक्त आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। अपने फेस पर मास्क लगा कर रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। नाउ वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। बेटा हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? वी लर्न दैट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड इंटरेस्ट एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क दे डू। हमें हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिना ये सोचे कि वो क्या काम करते हैं। बेटा वी कांट डू ऑल वर्क्स आवरसेल्फ, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हम सारे काम अपने आप नहीं कर सकते, हमें कुछ कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। लाइक फार्मर्स ग्रो फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर अस। हम जो भी मार्केट से फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, तो ये कौन ग्रो करते हैं? फार्मर्स। ठीक है ना बच्चे। सिमिलरली स्वीपर्स कलेक्ट द गार्बेज एंड क्लीन द रोड्स। आपके घर में मेड आती है, वो आपकी मम्मा की घर के काम करने में हेल्प करती है। सो बेटा वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन without thinking that what work he or she does, because
No work is big or small. Thank you. Meet you soon in the next video. Stay home, stay safe. Bye.